بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی سوتیلی بہن کے شوہر کو دیکھتی تو مجھے جلن ہونے لگتی، کیونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اور سوتیلی بہن کے شوہر نے اسے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اب میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے شیطانی منصوبہ بنایا اور سوتیلی بہن کے شوہر کو اپنے جھوٹے پیار میں پھنسا کر اس سے شادی کر لی۔ سوچا اب میری زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ لیکن شادی کے تیسرے روز شوہر نے غصے میں کہا، جاؤ میرے لیے کھانا بنا کر لاؤ۔ میں کچن میں گئی تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ ستیلی بہن مسکراتی ہوئی، تم نے میرے کپڑوں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ میں نے ابھی ابھی دھو کے رکھے تھے، میں نے غصے سے سمن سے کہا، جو کہ سب کے کپڑے استری کر کے الماری میں لٹکا رہی تھی۔ جب اس نے میرے کپڑوں کو استری کرنا شروع کیا تو میں تیزی سے اس کے پاس آئی اور اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے چھین لیے۔ یہ میری پسندیدہ کپڑے تھے۔ پچھلے ہفتے ہی اماں نے مجھے میری خواہش پر لے کر دیے تھے۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتی تھیں، میری کسی بات کو نہیں ٹالتی تھیں۔ حالانکہ یہ کپڑے اصل میں تو سمن لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ان کپڑوں کے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی، اس لیے ضد کر کے اماں سے وہ کپڑے لیے تھے تاکہ میں سمن کو جلا سکوں اور یہ احساس دلا سکوں کہ میں جو چاہوں گی وہ حاصل کر لوں گی اور اسے اس کی مرضی کی چیز نہیں ملے گی۔ ابھی بھی اماں نے شاید اسے کپڑے استری کرنے کو کہا تھا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینے تو وہ منہ بناتے ہوئے بولی، میں تو استری کر کے رکھ رہی تھی، تمہاری چیز کو خراب نہیں کر رہی تھی۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ تم ہو ہی نفرت کے قابل۔ میں نے غصے اور حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ رات کو کھانے کے وقت میں نے ابا کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ سمن میرے کپڑے خراب کر رہی تھی۔ میری یہ بات سن کر سمن حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ فوراً اماں نے اسے ٹھوکا مار کر خاموش کروا لیا۔ میں اور اماں ابا کے سامنے ایسا ہی کرتے تھے، ہمیشہ اسے نیچا دکھاتے اور ابا ہم دونوں کی بات پر یقین کر کے سمن کو ڈانٹ دیتے۔ ابھی بھی ابا نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں چاہیے اس کا خیال رکھو اور تم اس سے حسد کرتی ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ابا اسے باتیں سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے میں اور اماں خوشیاں منانے لگے۔ مجھے اور اماں کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور بھاتی بھی کیوں، وہ کون سا ہماری سگی تھی، وہ تو اس گھر پر ایک بوجھ ہی تھی، ہمیں تو بوجھ ہی لگتی تھی۔ بس ہم گھر کے سارے کام اس سے کرواتے تھے۔ جب تک اسے کوئی تکلیف نہیں ملتی مجھے خوشی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ابا کی وفات ہو گئی تھی۔ میری اماں نے سمن کے ابا سے شادی کی۔ سمن مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور چھوٹے ہونے کے باوجود بھی میں اسے ہر طرح سے تنگ کرتی تھی۔ اماں نے بھی خوب سوتیلا پن دکھایا اور مجھ میں بھی یہ نفرت بھر دی۔ حالانکہ اس کے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری ہر ضرورت پوری کرتے۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا بھی، لیکن پھر بھی میں ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کرتی تھی۔ اماں کے کہنے پر ابا نے اس کی پڑھائی بھی بہت ہی کم عمری میں چھڑوا دی تھی، جس پر وہ خوب روئی تھی۔ حالانکہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ہم دونوں ایک ہی اسکول میں جاتے تھے اور وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے اور ٹیچرز مجھے اس کی مثالیں دیتے اور کہتے کہ تمہیں اس سے سیکھنا چاہیے، وہ تمہاری بہن ہے، اور یہ سب مجھے بہت برا لگتا۔ میں گھر آ کر اماں سے شکایت کرتی اور بولتی کہ اس کی وجہ سے میری سب کے سامنے بے عزتی ہوتی ہے، جس پر اماں نے مجھے کہا، تم فکر مت کرو، میں اس کا حل ڈھونڈ لوں گی۔ اور پھر ابا کے سامنے اماں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی کہ لڑکیوں کو اتنا نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ لڑکیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اب سمن کی عمر ہو رہی ہے، اسے گھر کے کام کاج سیکھنے چاہیے، پھر چند سالوں میں ہم نے اس کی شادی کرنی ہے۔ اگر میں نے اسے یہ سب نہ سکھایا تو لوگ مجھے سوتیلے پن کا تانا دیں گے اور کہیں گے سوتیلی ماں تھی اس لیے کچھ نہیں سکھایا، اس نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب اسے گھر کے کام کاج کرنا آنے چاہیے۔ اور پھر ابا نے اماں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا اور اس کا اسکول چھڑوا لیا۔ اس دن وہ خوب روئی تھی۔ کئی بار اس نے ابا سے التجا کی کہ میرا اسکول مت چھڑوائیے، میں اسکول کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ لوں گی، لیکن اس کی ان تمام منتوں کے بعد بھی میں نے اور اماں نے اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہونے دیا اور اس کا اسکول چھڑوا ہی لیا۔ اس نے اسکول چھوڑا تو مجھے بھی سکون میسر آ گیا
हालांकि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, लेकिन अब कोई मुझे ये नहीं कहता था कि अपनी बहन से सीखो। एक दिन तो टीचर्स ने मुझसे ये सवाल किया कि तुम्हारी बहन ने स्कूल क्यों छोड़ दिया। लेकिन फिर सब लोग इस चीज़ को भूल गए। खानदान में सब बात करते थे कि हम समन का ख्याल नहीं रखते, जिस पर अम्मा मुंह तोड़ सबको जवाब देती और कहती कि ज़्यादा मोहब्बत और परवाह है तो इसे अपने पास रख लो। ये सब सुनकर सारे लोगों का मुंह बंद हो जाता, क्योंकि बातें करना आसान था और किसी जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल था। हर गुजरते दिन के साथ मैं हसद में बहुत ज़्यादा गिरती जा रही थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा था कि मैं अपनी शख्सियत ही खो रही हूँ। अब्बा एक मामूली सी नौकरी करते थे, इससे घर का खर्चा बहुत मुश्किलों से चलता था। ऊपर से घर का किराया भी देना पड़ता था। ऐसे में अम्मा समन की सारी ख्वाहिशात और इसकी ज़रूरतों को एक तरफ रखकर सिर्फ मेरी ही ख्वाहिशात पूरी किया करती थीं। ये सब देखते हुए भी आंखें बंद रखते थे। इन्हें लगता था कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर समन कभी गलती से इनसे 1 रुपया मांग भी लेती तो पहले तो अब्बा इसे खूब बातें सुनाते और फिर मेरी अम्मा अम्मा इससे कहती थी कि तुम अपने बाप के सामने ये नाटक मत किया करो, जैसे मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखती तो मुझे सबके बीच में बदनाम करवाना चाहती हो। और फिर वो इसे खूब सजा देती और ये सब देखकर मैं खूब हंसा करती थी। कभी वो कपड़े धो रही होती तो मैं धक्का देकर इसे पानी वाले फर्श पर गिरा देती, जिस पर इसे खूब चोट लगती। लेकिन फिर भी अम्मा इस पर रहम ना खाती और इसे काम में मगन रखती। घर के सारे कामकाज समन ही करती थी और मैं बैठकर मज़े से ऐशो आराम करती थी। मुझे अपनी ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अजीज़ थी। अगर गलती से कभी वो मुझे कह देती कि मेरे साथ काम में मदद करवाओ तो मैं पढ़ाई का बहाना बना देती और अब्बा के सामने काम करने के नौटिक करती। जैसे ही अब्बा घर में दाखिल होते मैं फ़ौरन टीवी का रिमोट एक तरफ रख दी और जल्दी से किचन में जाकर खड़ी हो जाती और यूं जाहिर करती थी कि जैसे सारे काम तो मैंने ही किए हैं। और समन पूरा दिन आराम करती है, जिस पर अब्बा समन से कहते कि अपनी बहन की थोड़ी बहुत मदद करवाया करो। अब तो तुम पढ़ाई भी नहीं करती, तुम्हारी बहन तो स्कूल भी जाती है, इसके बावजूद तुम पूरा दिन घर में फारिग रहती हो। ये सब सुनकर अम्मा और मुझे बहुत मज़ा आता था और बेचारी समन अपने आंसू पीती रह जाती थी। इन्हीं दिनों हमारे स्कूल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का आया। वो अमीर घराने का भी था। मैंने दूसरी लड़कियों की देखा देखी इससे दोस्ती कर ली और फिर हम दोनों के बीच बातचीत चलने लगी। एक दिन इसने मुझे एक खत दिया, मैंने अपनी किताब में रख लिया, लेकिन न जाने कैसे वो किताब अब्बा के हाथ में लग गई। मैं जानती थी कि अगर अब्बा ने किसी लड़के का खत देखा तो वो कोई लिहाज नहीं करेंगे। वो इन तमाम बातों पर कोई समझौता नहीं करते थे। अब्बा ने जैसे ही वो खत उठाकर पढ़ा और ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू की, तो मेरा दिल काँपने लगा। मैंने फ़ौरन से अम्मा को तमाम सूरत हाल के बारे में बता दिया। पहले तो अम्मा ने मुझे खूब डाँटा और कहा कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैंने अम्मा से कहा, मुझे बाद में डाँट लेना, लेकिन पहले मुझे इस मुसीबत से बचा लें। अम्मा बोली, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हम दोनों बाहर आए। समन अपने कमरे में थी। अब्बा ने जब वो खत अम्मा के सामने किया और कहा कि ये इसकी किताब में क्या कर रहा है, मुझे जवाब चाहिए, स्कूल इन कामों के लिए जाती है। तो अम्मा ने मस्कीन सा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं जी, ये तो समन का है, इसका थोड़ी है। इतना कहने की देर थी कि अब्बा ने जोर से समन को बुलाया। समन भागते हुए कमरे से निकली। इसके चेहरे पर घबराहट के आसार साफ नजर आ रहे थे। वो सूरत हाल को बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी। हैरत से अब्बा की तरफ देखते हुए कहने लगी कि जी अब्बा, क्या हुआ? इनके हाथ में वो खत था। तुम इस लड़के को कैसे जानती हो? बताओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी लड़के से चक्कर चलाने की? सहन में खड़े अब्बा जोर जोर से चला रहे थे। मैं और अम्मा एक तरफ खड़े थे। मैंने थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली दी और कहा कि खामोश रहो, अपने चेहरे पर घबराहट बिल्कुल मत लाना। अम्मा के कहने पर मैंने खुद को संभाल लिया। अब्बा समन को मुसलसल डांटे जा रहे थे और फिर उन्होंने जोर से इसे थप्पड़ मारा। समन जमीन पर आकर गिर गई। इसका होंठ फटा और इससे खून निकलने लग गया। मैं ये सब आराम से खड़े देख रही थी। हालांकि गलती मेरी थी और ये सब कुछ मैं नहीं ही किया था।
इसके बावजूद भी मुझे इसे सज़ा मिलते देखकर खुशी महसूस हो रही थी। समन ने रोती आँखों से मेरी तरफ देखा, जैसे वो कहना चाह रही हो कि तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद ये तमाशा खत्म हुआ। अब्बा अंदर जाकर सो गए और मैं और अम्मा भी अपने कमरे में आ गए। हम नहीं जानते थे कि समन वहां से उठकर कब अपने कमरे में गई है, लेकिन अगली सुबह इसका रवैया बहुत ही तब्दील नजर आ रहा था। वो काफी देर से उठी थी, हालांकि रोजाना सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता वही बनाया करती थी। जब मैं और अम्मा उठे तो हमें नाश्ता नहीं मिला। किचन खाली था, वहां कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। अम्मा और मेरा पारा चढ़ गया। मैंने ज़ोर ज़ोर से समन को बुलाना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसके कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब मुझे थोड़ी तशवीश होने लगी कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। मैंने अम्मा से कहा कि वो तो अपने कमरे में नहीं है। माँ बोली, कहीं भाग तो नहीं गई, आखिर वो कहाँ भागेगी। मैंने झुंझुलाते हुए कहा। फिर मैंने पूरा घर छान मारा और आखिरकार छत पे एक कोने पर वो बैठी नजर आई, घुटनों में सर दिए, रोते रोते न जाने कब सो गई थी। इसे वहां देखकर मैंने इस्तहजाया अंदाज में मुस्कुरा उठी। देखे, अम्मा कहाँ बैठी है, लगता है पूरी रात इधर ही गुजारी है। अकल तो अब भी इसे नहीं आई। अगर अकल आई होती कि इसने सबक सीखा होता, अब तक किचन में खड़ी नाश्ता बना चुकी होती। मेरी बात सुनकर अम्मा आगे बढ़ी और पहुंच से इसे ठोकर मारते हुए इसे उठाया। ए लड़की, यहाँ बैठी क्या कर रही है, नीचे जाकर नाश्ता बना। ये ये नाटक वाटक मैंने बहुत देखे हैं, इसलिए ये सब ड्रामे मेरे सामने मत कर। भूख से मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं और तुझे मज़े आ रहे हैं। चल जल्दी कर और देर मत कर, तेरे अब्बा भी उठते होंगे, इन्हें भी नाश्ता चाहिए। ये कहकर अम्मा और मैं सीढ़ियों की तरफ मुड़ गए, लेकिन इसी वक्त इसकी आवाज़ ने हम दोनों के कदमों को रोक लिया। मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, जिसने बनाना है वो खुद बनाए। पहली बार इसने ऐसी बगावत की थी। इसकी बात सुनकर अम्मा चील की तरह इसकी तरफ झपटी और इसके बाल खींचकर इसे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे इनकार करेगी, चल नीचे उतर। अम्मा इसे बाजू से पकड़कर घसीटते सीढ़ियों से नीचे ले आई। दर्द की वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। हम दोनों इस दौरान ये भूल गए थे कि अब्बा भी घर पर हैं। इसी वक्त अब्बा शोर की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आए और उन्होंने सामने जब समन को इस हालत में देखा तो हैरत से इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मा भी यूं अचानक से इन्हें सामने देखकर घबरा गईं और मैं तो बिल्कुल ही गुंग हो गई थी, क्योंकि आज से पहले तो अब्बा ने कभी भी ये सब नहीं जाना था और ना ही जानने की कोशिश की थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों की चोरी पकड़ी गई हो। मैं फौरन से अम्मा के पीछे छुप गई। अम्मा ने जल्दी से समन के बाल छोड़े, जिसकी वजह से सीढ़ियों से रिपटती हुई नीचे अब्बा के कदमों के पास आकर गिर गई। अब्बा को यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब देख रहे हैं। उन्होंने इसी वक्त अम्मा को नीचे बुलाया और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रही हो। आज तक मैं हर चीज़ को नज़रअंदाज करता आया, मुझे लगा कि ये गलत है और तुम सही हो। मैंने इसे तुम्हारी जिम्मेदारी में दिया था, लेकिन तुम इसके साथ क्या सलूक कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से, अब्बा ने जोर से कहा। अम्मा और मैं भागते हुए कमरे में बंद हो गए। जो भी था, अब्बा इस घर के सरबराह थे और हम दोनों इनसे खूब डरते थे। अब्बा समन को अंदर लेकर गए और इसकी मरहम पट्टी करवाई। इस दिन के बाद से अब्बा ने समन का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। मुझे और अम्मा को यूं लग रहा था जैसे हम दोनों की राजधानी खत्म हो चुकी है। अब हम दोनों इस घर पर राज नहीं कर पाएंगी। वो काम जो पहले समन करती थी, अब वो हमें करने पड़ रहे थे। अब्बा हमेशा परेशान रहते और ज़्यादा वक़्त समन के साथ ही गुजारते। यूँ लग रहा था जैसे इनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। कई बार अम्मा ने डरते डरते इनसे पूछने की कोशिश की कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, तो उन्होंने आगे से अम्मा को झाड़ दिया। वो हमेशा इस बात पर दुखी रहे कि वो समन का ख्याल नहीं रख पाए और समन इनके होते हुए भी इतना जुल्म बर्दाश्त करती रही। और फिर एक दिन अचानक से अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और हम सब लोग इमरजेंसी में अब्बा को सरकारी अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही अब्बा ने दम तोड़ दिया। उनके सीने में काफ़ी दिन से तकलीफ थी, लेकिन वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर रहे थे। हम इनका जनाजा लेकर घर आए। हमसे किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखा। मुझे अफ़सोस हो रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन फिर ये एहसास सिर्फ़ कुछ दिन तक ही रहा।
जैसे ही अब्बा की मौत को हफ्ता गुजरा तो मैं और अम्मा वापस अपने पुराने रूप में आ गए। वो जो कुछ दिन का पछतावा था अब वो ख़त्म हो चुका था। अब तो अब्बा भी नहीं थे जो हमसे सवाल करते। अब हमें किसी चीज़ का डर नहीं था। हमने खुलकर सबने के खिलाफ महाज खोल दिया। हमने इसे हर तरह से परेशान करने की कोशिश करते। घर का खर्चा उठाने का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए अम्मा ने सबने को लोगों के घरों में काम काज के लिए भेज दिया और वो बेचारी पूरा दिन घर के काम काज करके घर आती। तो फिर हम दोनों घर के काम में इसी से करवाते। वो लोगों के घरों से जितना कमाती थी वो सब अम्मा इसके हाथ से ले लेती थी और मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए खर्च कर दिया करती थी, जिस पर समन चुपचाप बेबसी से देखती रह जाती थी। हमने पूरी तरह से इसे बेबस करके रख दिया था। इसे यूं तकलीफ में देखकर मैं एक अनजानी सी खुशी महसूस करती थी। यूं लगता था जैसे मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद हो और वो है समन को नीचा दिखाना, और मैं पूरी तरह से इसी काम में मगन रहती थी। मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मुझसे आगे पढ़ाई नहीं की जा रही थी। वैसे भी मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। नाम के लिए मैंने मैट्रिक कर लिया था। मेरे लिए यही काफ़ी था। अब अम्मा चाहती थी कि रिश्ते देखकर मेरी शादी कर दे, लेकिन फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि समन इसकी बड़ी बहन है, पहले इसकी शादी करनी चाहिए। लोग इतने सवालात करने लगे कि अम्मा तंग आ गई और फिर अम्मा ने एक रिश्ते करवाने वाली को बुलवाया और इससे कहा कि समन के लिए गुजारे लायक रिश्ता ढूंढो ताकि मैं इसे इस घर से चलता करूं। इस वक्त तक अब्बा की पेंशन भी आने लगी थी। अब्बा एक सरकारी मुलाजिम रह चुके थे, इसलिए जल्दी ही पेंशन भी लग गई। अम्मा वो सारी पेंशन अपने पास रखती थी। वो चाहती थी कि इस पेंशन को मेरी शादी पर खर्च करें। समन को इस पेंशन के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस घर का खर्चा चलाने के बारे में ही सोचती रहती थी। और फिर एक दिन अम्मा ने इसे कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक मुनासिब रिश्ता ढूंढा है, तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी शादी के दिन शुरू होने वाले हैं। ये खबर इस पर क़यामत बनकर टूटी थी, क्योंकि ना तो इसे इसकी राय ली गई थी और ना ही इसी इत्तला दी गई थी। चुपचाप ही अम्मा ने रिश्ता पक्का कर दिया था। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था कि इसका रिश्ता किससे हुआ है। अम्मा ने कहा था कि ये सब बात मैं बताऊंगी, और फिर जिस दिन निकाह का वक़्त आया तब मुझे पता चला कि अम्मा ने इसका रिश्ता मोहल्ले में ही एक रिक्शा चलाने वाले आदमी से किया है, जिसकी उम्र भी समन से काफ़ी ज़्यादा थी। मैं दिल ही दिल में काफ़ी खुश हो रही थी कि इतने गरीब और बड़ी उम्र के आदमी से इसकी शादी हो रही है। समन को जब पता चला तो इसने चुपचाप सब्र के घूंट पी लिए और निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह कबूल करने के बाद इसी दिन इसकी रुखसती कर दी गई। वो रुखसत होकर इस रिक्शा ड्राइवर के साथ इसके घर चली गई। वो रिक्शा ड्राइवर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। छोटा सा घर था और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वसाइल बहुत ही महदूद थे। इसके जाते ही मैं बहुत पुरस्कून हुई कि चलो भला सर से टली। लेकिन अब मसला ये था कि घर के कामकाज कौन करता। फिर अम्मा ने इसका हल भी ढूंढ लिया। चूंकि वो मोहल्ले में ही ब्याह कर गई थी, इसलिए अम्मा ने इसे हुक्म दिया था कि रोज़ घर आकर कामकाज करके जाओ, फिर अपने घर का काम करना। समन अम्मा के डर से रोज़ाना सुबह सवेरे हमारे घर आकर काम करने लगी थी। लेकिन जब इसके शौहर को पता चला तो इसने शदीद गुस्सा किया और हमारे घर आकर झगड़ा भी किया कि मेरी बीवी तुम लोगों की नौकरानी नहीं है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि इससे घर के काम काज करवाओ। ये कहकर वो इसे अपने साथ ले गया। मुझे इसकी इतनी मोहब्बत और परवाह देखकर शदीद गुस्सा आया। मैं समर को कभी भी खुश नहीं देख सकती थी और अब वो इस रिक्शा ड्राइवर के साथ इंतहा से ज़्यादा खुश रह रही थी। मैं जो सोच रही थी कि गुर्बत में भी ज़िंदगी जिएगी और सारी ज़िंदगी जोड़ तोड़ में ही गुजर जाएगी, तो वो सब ख्यालात मेरे गलत साबित हुए थे। वो तो वहाँ बहुत ही खुशी से रह रही थी। इसकी सास भी बहुत ही अच्छी औरत थी। वो समर की हमेशा तारीफ करती और इसका ध्यान रखा करती थी। इन्हीं दिनों अम्मा ने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हारी भी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही ऊंचे घर से रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी। वैसे एक तो रिश्ते मेरी नज़र में हैं, मैं जल्दी ही बात चलाती हूँ, तो मैं बहुत ही अच्छी से रुखसत करूंगी। तुम्हारे लिए मैंने बहुत से पैसे बचा कर रखे हुए हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरी शादी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और फिर वाकई मैंने अम्मा ने एक नवाब ख़ानदान में मेरा रिश्ता जोड़ दिया। मैं सबसे पहले मिठाई लेकर समन के घर गई और इसे खूब जला जला कर बात बताई, लेकिन इसके चेहरे पर बिल्कुल भी जलन नज़र नहीं आ रही थी। वो बहुत ही मुत्तमिन थी और इसका ये इत्मीनान देकर मैं जल कर रह गई।
फिर मैं वहाँ से वापस आई, पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई थी कि मेरी शादी एक नवाब ख़ानदान में हो रही है। सब खूब तारीफ़ें करते और हसत भरी निगाहों से मुझे देखते। मैं सबके बीच में अतराती फिरती थी। अम्मा ने शादी के लिए बहुत ही बेहतरीन बंदोबस्त किया था और इन्हीं दिनों सुमन को पता चला कि अब्बा की पेंशन आती थी और घर का खर्चा इससे चलाया जा सकता था। लेकिन अम्मा और मैंने इसे तकलीफ़ देने के लिए लोगों के घरों में कामकाज पर लगा दिया। ये सुनकर इसे बहुत दुःख हुआ, लेकिन इसने एक लफ्ज़ भी ना कहा। बहरहाल मुझे और अम्मा को इसके दुःख से कोई लेना देना नहीं था। मेरी शादी की तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। अम्मा ने एक बड़ा हॉल मेरे लिए बुक करवाया था। मोहल्ले वाले मेरी शादी के बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे। वैसे भी पैसा सबकी आंखों में धूल झोंक दे ही देता है। मैं दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन समन से ज़्यादा नहीं। वो सादगी में भी बहुत प्यारी लगती थी। यहाँ तक कि जब वो मेरी शादी पर आई तो मेरे ससुराल वाले भी इसकी तारीफ़ें कर रहे थे कि तुम्हारी बड़ी बहन बहुत प्यारी है। जिस वजह से मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं दुल्हन थी। सबको मेरी तारीफ़ होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी वो सबकी नज़रों का मरकज़ बनी हुई थी। फिर मैंने वलीमे की तकरीब में इसे मदऊ ही नहीं किया, बल्कि मैंने अम्मा से कह दिया कि हरगिज़ भी इसे मेरे वलीमे पर मत बुलाना। सारे मेहमानों को वो अपना दीवाना बनाने लग जाती है। पता नहीं कैसा जादू करती है। और फिर अम्मा ने मेरे कहने पर इसे वलीमे पर आने से साफ मना कर दिया और वलीमे पर नहीं आई थी। लेकिन मेरे ससुराल वाले बार बार इसके बारे ही सवालात कर रहे थे, जो कि मुझे एक आंख नहीं भा रहे थे। शादी के शुरू दिन तो बहुत ही अच्छे गुजरे। मैं अमीर कबीर ख़ानदान में ब्याह कर गई थी। मुझे वहाँ के रीत रिवाज तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करती थी। वैसे भी मैं लाउबाली और इंतहाई प्रौढ़ लड़की थी। मैंने अम्मी के घर कामकाज नहीं सीखे थे, जिस वजह से ससुराल में खूब बातें सुनने को मिली। वो लोग अमीर थे, लेकिन नवाब ख़ानदान के थे, जहाँ पर रहन सहन को बहुत ही अहमियत दी जाती थी। अखलाक भी अच्छा होना चाहिए था, लेकिन मुझे तो कोई भी तौर तरीका नहीं आता था। इस वजह से मेरी सास मुझे खूब बातें सुनाती और जब मैं इसकी बातें सुनकर अपने शौहर के सामने रोने का नाटक करती तो मेरा शौहर भी आगे से मुझे डांट देता और कहता कि मेरी माँ जो कहती है बिल्कुल सही कहती है, तुम्हें तो तमीज़ ही नहीं है, मेहमानों के सामने कैसे बैठती हो, तुम्हें इनसे अच्छा बर्ताव करना आता ही नहीं है। ये कहकर वो बात को रफा दफा करके सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देता। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच अनबन होने लग गई थी। अगर कभी मैं अपने मेके में रहने के लिए आती तो अम्मा मुझसे कहती तो खुश नज़र नहीं आती है, जिस पर मैं चिढ़ कर कहती थी मैं खुश नहीं हूँ तो जाकर अपनी इस समन को देख लो, वो तो बहुत खुश है ना अपने ससुराल में। मुझे इसकी खुशी से जलन होती थी। इन्हीं दिनों मुझे खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो मेरे सर पर एक भूत सवार हो गया। अब मैं भी जल्दी से जल्द खुशखबरी सुनना चाहती थी। जब मैंने अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया तो वो चिढ़ते हुए बोला, क्या तुम हर वक्त अपनी बहन से मुकाबला करती रहती हो? तुमसे हजार गुना ज्यादा अच्छी है वो, पता नहीं तुम इसे इतनी नफरत क्यों करती हो। अब तुम औलाद के लिए भी इससे मुकाबला करोगी? शर्म कर लो। कुछ शौहर के मुंह से अपनी बहन की तारीफ सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। हालांकि इसने किसी गलत मानों में तारीफ नहीं की थी, लेकिन मैंने इसे गलत मानों में ही ले लिया। जो भी मुझे समझाने की कोशिश करता मैं आगे से इसे ही गलत समझती थी। और फिर इस दिन मेरा अपने शौहर से बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ, इतना कि वो गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात वो कमरे से बाहर। अगली सुबह मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में तलब किया और कहा कि हमारे यहाँ ऐसे रिवाज नहीं हैं कि औरतें अपने शौहरों से लड़ाई करें और शौहर पूरी रात कमरे से बाहर रहे। तुम खुद अपने शौहर को बाहर का रास्ता दिखा रही हो। यहाँ रहना है तो तरीके से रहा करो, वरना यहाँ से चली जाओ। इसके साफ अल्फाज में कहने पर मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी कि मेरी सास बहुत ही तेज मिजाज की है और मेरी इसके सामने बिल्कुल भी नहीं चल सकती। मुझे अपने शौहर से छुटकारा चाहिए था और अपनी सास से भी, लेकिन मैं इस दौलत और जायदाद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। मैं ये ऐशो आराम छोड़ने का सोच नहीं सकती थी। वैसे कहने को ये ऐशो आराम जो मैसर था, लेकिन कोई भी चीज़ मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। मैंने जो सोचा था कि मैं फिल्मों ड्रामों की तरह रोज़ाना शॉपिंग पे जाऊंगी, जैसे फिल्मों में अमीर लड़कियां रोज़ाना शॉपिंग वगैरह पर जाती रहती हैं। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं खरीद सकती थी। यहाँ तो औरतों को बाजार में भी नहीं जाने दिया जाता था। हर चीज़ मेरी सास की मर्जी से आती थी।
यहाँ तक कि कपड़ों का रंग भी वही तय करती थीं। मैं ये सब आखिर कब तक बर्दाश्त करती? इसलिए एक दिन मैंने एक फ़ैसला कर लिया कि मैं ये रिश्ता ही ख़त्म कर देती हूँ। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने हमेशा अपने घर में समन पर हुक्म चलाया और इसे नीचे दिखाया था। अब यहाँ पर मुझ पर हुक्म चलाया जा रहा था और मेरी अना समझौते पर राज़ी नहीं थी। इसीलिए मैंने अपने शौहर से साफ अल्फाज में तलाक का मुतालबा कर दिया, जिस पर वो पहले तो शदीद गुस्से में आया और फिर इसने मुझे ये कहते हुए तलाक दे दी कि तुम जैसी पोहड़ औरत के साथ कोई मर्द नहीं रह सकता है। तुम्हारी अब इस घर में कोई भी जगह नहीं है। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मुझे लगा था कि वो शायद मुझसे माफ़ी मांगेगा और कहेगा मुझसे तलाक मत लो, मगर यहाँ तो मेरी तवक्को के बरखलाफ ही हुआ था। अपना चार मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ा। जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी सास ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया और मुझे कहा, जो जेवर हमने तुम्हें दिया था वो सब वापस करो। ये कहते इसने मुझसे सारा का सारा जेवर वापस ले लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इतना कीमती जेवर हाथ से नहीं जाने दे सकती थी, मगर इसने मुझसे वो छीन लिया। जब मैं घर आई तो अम्मा सामान के साथ मुझे अंदर आते देख परेशान हो गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने हैरत से सवाल किया। मैंने इन्हें कोई जवाब ना दिया और चुपचाप कमरे में जाकर बंद हो गई। रात को मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर आकर अम्मा को बताया, अब मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली है। मेरे इतने कहने की देर थी कि अम्मा अपनी जगह से उठी और एक जोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। मैं हैरत और बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे अम्मा को देख रही थी। आज से पहले तो अम्मा ने ऐसा कभी नहीं किया था। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाना तो दूर की बात, कभी सख्त लहजे में मुझसे बात भी नहीं की थी। मैं रोते हुए अंदर चली गई। अगली सुबह अम्मा का मूड थोड़ा बेहतर था और वो मेरा सामान खोले बैठी न जाने क्या तलाश कर रही थी। मैंने बाहर आकर रूखे लहजे में कहा, मेरे सामान में क्या ढूंढ रही हैं? तो अम्मा ने मेरी तरफ देखकर कहा, तेरे जेवरात कहाँ हैं जो तेरी सास ने शादी पर तुझे पहनाए थे? अम्मा की बात सुनकर मैं चुपचाप करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो जेवरात उन्होंने वापस ले लिए हैं। मैंने बहुत ही इत्मीनान से अम्मा को ये बात बता दी। वो अपनी जगह से गोया उछल कर रह गईं। तूने अपनी सास को वो जेवरात क्यों दे दिए? तुझे पता भी है वो कितने महंगे थे। तुझ जैसी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अम्मा मुझे बेनकत सुना रही थीं। मैं अब क्या कहती? चुपचाप अम्मा की बातें सुनती रही। अगले दिन ये खबर मोहल्ले भर में फैल गई कि मेरी तलाक हो गई है। मोहल्ले की औरतें रोज़ हमारे घर आकर बैठ जाती और कहती, तुम अपना घर नहीं बसा सकी, तुम्हारी बहन समन भी तो है, कितने अच्छे से अपने घर में रह रही है। हालांकि इसका शौहर तो गरीब है। तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अमीर थे। कितने पैसे लगाकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी की थी और भी न जाने क्या कुछ बोलती रहती थी। वो औरतें इनकी बातें सुनकर मैं थक गई थी। मुझे शदीद गुस्सा आता कि वो लोग अब भी समन के बारे में मेरे सामने बात कर रही हैं। समन से जलन में मजीद इजाफा हुआ। इन्हीं दिनों मुझे पता चला इसका मिसकैरेज हो गया है। यह खबर सुनकर मुझे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई। अब मैं किसी भी तरह इसका घर बर्बाद करना चाहती थी। इसलिए खुशियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। फिर एक दिन मैं बहुत ही अच्छी बनती इसके घर में गई, इसकी सास से बातचीत की और जब इसका शौहर आया तो खूब बन सवर कर इसके सामने चली गई। समन सब कुछ देख रही थी और चुपचाप सब्र से सह रही थी। मैं जानती थी कि वो मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती है और फिर अक्सर ही मैंने इसके घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। एक दिन तो मैं बहाने से 2 दिन के लिए इसके घर पे रुक के भी गई। इसी दौरान पूरी तरह से मैंने इसके शौहर को अपनी मोहब्बत के जाल में फँसा लिया था। मैं चूँकि हमेशा से बन-ठन कर रहती थी और समन सादा-सादा फिरती थी। इसीलिए इसका शौहर बहुत जल्द मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। एक दिन समन ने मुझसे कहा कि तुम मेरे शौहर से दूर रहो। मैंने इससे कहा, अगर तुम्हें अपने शौहर की अपनी परवाह है तो खुद ये बात अपने शौहर से जाकर कहो। अगर वो तुमसे वफादार हुआ या तुम इसे खुश रख पाती तो वो मेरी तरफ मुतवज्जो ना होता। ये कहकर मैंने इसका मुंह बंद करवा दिया। अगले कुछ दिन बाद मैंने इसके शौहर को दबाव डालना शुरू किया कि इसे तलाक देकर मुझसे शादी करो। पहले तो वो ना माना, लेकिन फिर मेरी मोहब्बत पे पागल हो गया और इसने समन को तलाक दे दी। मैंने अगले दिन ही इसके शौहर से कोर्ट मैरिज कर ली। जब मेरी अम्मा को ये खबर मिली तो उन्होंने मुझे खूब बातें सुनाई और कहा कि क्यों मुझे मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जत कर रही हो।
समन के पास रहने की अब कोई जगह नहीं थी। वो अम्मा के घर आई। अम्मा ने इसे सही टफ टाइम शुरू कर दिया। कुछ भी था, मैं अम्मा की बेटी थी, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी। समन की जिंदगी एक बार फिर से इसी रुख पर आ गई। फिर कभी कभी अपने घर पर भी आती थी और जानबूझकर ऊंची आवाज में समन के सामने अपने और अपने शौहर के तल्लुकात का जिक्र करती कि मैं इसके साथ बहुत ही खुश हूँ। एक दिन इसकी बस हो गई तो वो मेरे पास आई और रोते हुए बोली, तुमने बहुत ही गलत किया है। मैं तुम्हारी इस नाइंसाफ़ी को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अल्लाह ज़रूर इंसाफ़ करेगा। ये कहकर वो उठकर चली गई, लेकिन मैं इसकी बात पर कहके लगाकर हंसती रही और इसका मजाक उड़ाती रही, ये जाने बिना कि हर जुल्म का एक न एक दिन इख्तिताम ज़रूर होता है। मैं मज़े से अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि मेरी पकड़ का वक़्त आने वाला है। ठीक 3 दिन बाद ही मैं जब सुबह सवेरे उठकर किचन में नाश्ता बनाने गई, तो सामने का मंज़र देखकर मेरी जान निकल गई। क्योंकि बच किचन में सामने ही मेरा शौहर एक औरत के साथ बैठा बहुत ही नाज़ेबा हालत में मौजूद था। इसे इस हाल में देखकर मेरी चीखें निकल गईं। मैंने सोचा भी नहीं कि वो मेरे साथ इस तरह का धोखा करेगा। मैं इस औरत को नहीं जानती थी। जब मैंने अपने शौहर से सवाल किया कि ये कौन है, तो वो ढेर बनकर कहने लगा है, कोई मेरी जानने वाली। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? मैंने इससे कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो वो जोर से हंस हंस कर कहने लगा, अरे तुम बीवी कहाँ, तुम्हारी तो खूबसूरती की वजह से मैंने तुमसे शादी की है, वरना तुम्हारी औकात तू मेरे कदमों में बैठने की भी नहीं। पहले जिससे तुमने शादी की, इससे तलाक लेकर आ गई और फिर अपनी बहन का घर तोड़वा कर तुमने मुझसे शादी की। तुम जैसी औरतें घर बसाने के लिए थोड़ी होती हैं, सिर्फ वक़्त गुज़ारने के लिए होती हैं। इसकी बातें मेरे मुँह पर तमाचा बनकर लग रही थीं। मैंने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर तमाम मोहल्ले वालों को जमा कर लिया और कहा कि मेरे शौहर का इस औरत के साथ चक्कर है। सब थू-थू करने लगे। मेरे शौहर ने वहीं खड़े-खड़े मुझे तलाक दे दी। मैं एक बार फिर से तलाकशुदा होकर घर वापस आ गई। अम्मा को जब तमाम मामले के बारे में पता चला, तो अम्मा बोली, तूने इस लड़की का दिल दुखाया और इसका घर तोड़ा, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं अम्मा के ऐसे लहजे पर हैरत से इसकी तरफ देखने लगी और कहा कि ये सब क्या बोल रही हो? अम्मा बोली, जो भी बोल रही हूँ सच ही बोल रही हूँ। इतने दिन से वो मेरे साथ रह रही है और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तूने इसके साथ बहुत ही गलत किया है, बल्कि हम दोनों सारी जिंदगी इसके साथ गलत करते आए हैं। इसके बावजूद वो मेरा ध्यान रखती है, सारा दिन मेरा ख्याल रखती है, थकती नहीं। तेरे साथ वही हुआ जो तूने इसके साथ किया था। तूने इसका घर तोड़ा और तेरा घर किसी और औरत ने तोड़ दिया। अम्मा की बातें मुझे बहुत ही बुरी लग रही थी, इसलिए मैं अम्मा से बदतमीजी करके अंदर आ गई। अब हर गुजरते दिन के साथ मैं समन से और बुरा सलूक करने लग गई थी, मगर अम्मा ने इससे अपना रवैया बेहतर कर लिया था और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारी उम्र अम्मा ने मुझे इससे नफरत करना सिखाई थी और अब आखिरी उम्र में यूं पलटा खा रही थी, लेकिन मैं तो अपनी इस नफरत को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती थी। समन को मैं आते जाते ताने मारती, लेकिन वो चुप रहती, कुछ भी ना बोलती, जिस वजह से मैं इस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता। इन्हीं दिनों मैंने हमारे मोहल्ले के एक मर्द के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया। वो पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। मैं किसी भी तरह से दोबारा अपना घर बसाना चाहती थी। जब इसकी बीवी को ये पता चला कि मेरा इसके मियाँ के साथ चक्कर है चल रहा है, तो वो हमारे घर आके इसने खूब तमाशा किया। अम्मा ने इस दिन मुझे बहुत मारा। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि अम्मा ने मुझे मारा था, और वो भी इस उम्र में। मैं नफ़रत की गहराइयों में गिर गई और मैंने अगले ही दिन एक मंसूबा बनाया। जब सुमन छत पर गई और कपड़े फैलाने लगी, तो मैं पीछे से आई। मैंने सोचा कि मैं इसे धक्का देकर छत से नीचे गिरा दूं, ताकि मेरी इस से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए। लेकिन इसी वक्त धुले हुए कपड़ों के पानी से मेरा पाँव फिसला और मैं खुद ही छत से नीचे रोड पर गिर गई।
मोहल्ले वाले सब मेरी चीखें सुनकर जमा हो गए। सब मेरा अंजाम देख रहे थे। रोड पर गिर गई। मोहल्ले वाले सब मेरी चीखें सुनकर जमा हो गए। सब मेरा अंजाम देख रहे थे। अब मैं मौजूर हालत में बिस्तर पर पड़ी समन के रहमो करम पर हूँ। सारी जिंदगी मैंने इसे नीचा दिखाने में गुजार दी थी। अपनी सारी जिंदगी ज़ाया कर दी और नफ़रत में इतनी गिर गई कि अपने आप को ही माज़ूर कर लिया। अब मैं किसी को भी मुँह दिखाने के लायक नहीं, लेकिन अब भी मैं इसकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे नफ़रत होती है और शायद मैं इस नफ़रत को कभी भी अपने दिल से ना निकाल सकूँ। रही बात अम्मा की, तो अम्मा बहुत सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी हालत पर रहम खाने और कुछ नहीं कर सकती हैं। वो बस बेबसी से मेरी तरफ देखती हैं और एक आह भर लेती हैं। थोड़े दिन बाद अम्मा ने एक अच्छी जगह समन का रिश्ता कर दिया और शादी करके रुखसत कर दिया। वो अपनी ज़िंदगी में अब खुश है और मैं अपनी तन्हाइयों के साथ अंधेरे कमरे में अकेलेपन का शिकार अपनी किस्मत पर रोती रहती हूँ, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई काम नहीं है।